آج ہم تاریخ کے ایک ایسے واقعے کی گہرائی میں اتریں گے جو بڑی امیدوں، شاہی قیادت اور ایسی تباہ کن ناکامی کی کہانی ہے جس نے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں دوسری صلیبی جنگ کی، جو 1147 سے 1149 تک لڑی گئی۔ جی، ہمارے سامنے جو ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی مہم نہیں تھی، اسے یورپ کے دو سب سے بڑے بادشاہوں نے خود لیڈ کیا۔ بالکل، فرانس اور جرمنی کے بادشاہ۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی تیاری اور قیادت کے باوجود یہ جنگ مشرق میں اتنی بری طرح ناکام کیوں ہوئی؟ آئیے اس پیچیدہ کہانی کے پرتوں کو کھولتے ہیں۔ بالکل، اور یہ پہلی صلیبی جنگ کے مقابلے میں کہیں زیادہ منظم تھی۔ اس کی قیادت فرانس کے بادشاہ لوئی سیونز اور جرمنی کے بادشاہ کونراڈ سوئم کر رہے تھے۔ جی، یعنی یورپ کی دو سپر پاورز ایک ساتھ میدان میں تھیں۔ جی، اور اس سب کے پیچھے ایک فوری وجہ تھی، ایک ایسا دھچکا جس نے پورے مسیحی یورپ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ 1144 میں کاؤنٹی آف ایڈیسا کا زوال۔ ایڈیسا یہ پہلی صلیبی ریاست تھی جو قائم ہوئی اور پہلی ہی تھی جو مسلمانوں کے قبضے میں واپس چلی گئی۔ اچھا، تو یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ ایڈیسا کا زوال، یہ وہ چنگاری تھی جس نے آگ لگائی۔ لیکن ایک شہر کا گرنا اتنا بڑا واقعہ کیوں بن گیا کہ یورپ کے بادشاہ اپنی فوجیں لے کر ہزاروں میل دور چل پڑے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، ایڈیسا جغرافیائی طور پر سب سے الگ تھلگ، سب سے کمزور اور سب سے کم آبادی والی صلیبی ریاست تھی۔ اچھا، یہ باقی صلیبی ریاستوں کے لیے ایک بفر زون کی طرح تھی۔ اس پر موصل اور حلب کے حکمران عماد الدین زنگی کی نظر کافی عرصے سے تھی۔ جب 1144 میں زنگی نے اس پر قبضہ کیا تو یہ صرف ایک شہر کا کھونا نہیں تھا، یہ ایک نفسیاتی شکست تھی۔ ایک پیغام تھا کہ صلیبی ریاستیں ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتی۔ بالکل، کہ انہیں شکست دی جا سکتی ہے۔ یہ خبر یورپ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلی۔ اور یورپ کا رد عمل کیا تھا؟ کیا سب فوراً تیار ہو گئے؟ نہیں، فوراً نہیں۔ پوپ یوجین سوئم نے ایک پاپائی فرمان جاری کیا جس میں نئی صلیبی جنگ کا مطالبہ کیا گیا۔ اور اس زمانے میں پوپ کا فرمان تو بہت بڑی بات ہوتی تھی۔ جی، یہ ایک طرح سے پورے مسیحی یورپ کے لیے ایک روحانی اور سیاسی حکم نامہ تھا جسے نظر انداز کرنا کسی بادشاہ کے لیے بھی ممکن نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی ابتدائی رد عمل بہت ٹھنڈا تھا۔ یہ دلچسپ ہے، مطلب پوپ کے حکم کے باوجود لوگ تیار نہیں تھے، تو پھر یہ تحریک بنی کیسے؟ اصل تحریک فرانس کے بادشاہ لوئے ہفتم کی طرف سے آئی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کی کچھ ذاتی وجوہات بھی تھی۔ اچھا، کیسی وجوہات؟ وہ شاید اپنے کچھ گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتے تھے یا اپنے مرحوم بھائی کی کوئی منت پوری کرنے کے لیے مقدس سرزمین جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ لیکن ظاہر ایک شخص کے ارادے سے اتنی بڑی فوج تو کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو پھر وہ کون سی شخصیت تھی جس نے اس پورے معاملے میں جان ڈال دی؟ وہ تھے برنارڈ آف کلیرواکس۔ یہ اس دور کے ایک انتہائی کرشماتی اور با اثر مبلغ تھے۔ آپ انہیں اس دور کا سپر سٹار مبلغ کہہ سکتی ہیں۔ واہ! ان کی تقریروں میں ایسا جادو تھا کہ وہ لوگوں کے دلوں میں جوش بھر دیتے تھے۔ انہوں نے پورے فرانس اور پھر جرمنی کا دورہ کیا اور لوگوں کو اس مقدس جنگ کے لیے تیار کیا۔ یہاں تک کہ جرمنی کے بادشاہ کو بھی؟ جی، یہاں تک کہ جرمنی کے بادشاہ کونراڈ سوئم، جو پہلے ہچکچا رہے تھے، برنارڈ کی تقریر سن کر رونے لگے اور جنگ میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا۔ یعنی ایک شخص کی تقریروں نے دو بادشاہوں اور لاکھوں لوگوں کو جنگ کے لیے تیار کر دیا؟ یہ تو کمال کی بات ہے۔ بالکل، اور برنارڈ کی شخصیت کا ایک اور پہلو بھی اہم ہے۔ جب روڈولف نامی ایک جنونی راہب نے جرمنی میں یہودیوں کے خلاف تشدد بھڑکانا شروع کیا، اچھا، اور کہا کہ صلیبی جنگ سے پہلے گھر کے دشمنوں سے نپٹنا چاہیے، تو برنارڈ نے اس کی سخت مخالفت کی۔ وہ خود وہاں گئے، روڈولف کو روکا اور کہا کہ یہودیوں پر حملہ کرنا خدا کے حکم کے خلاف ہے۔ اس سے تو ان کا اخلاقی قد اور بھی بڑھ گیا ہوگا۔ یقیناً۔ اچھا، تو یہ صرف مقدس سرزمین کی جنگ نہیں تھی؟ مجھے تو ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ صلیبی جنگ کا مطلب یروشلم ہوتا ہے۔ یہ اسپین والی کہانی کہاں سے آئی؟ یہ اس جنگ کا ایک بہت ہی حیران کن پہلو ہے۔ پوپ نے صلیبی جنگ کے تصور کو وسیع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ آئیبیرین جزیرہ نما یعنی موجودہ اسپین اور پرتگال میں مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، جی، جنہیں مور کہا جاتا تھا، ان کے خلاف لڑنے والوں کو بھی وہی روحانی درجہ ملے گا جو مقدس سرزمین جانے والوں کو ملے گا۔
उस वक्त वहां रिकॉन्क्विस्टा यानी मुसलमानों से इलाका वापस छीनने की जंग सदियों से जारी थी। तो इसका मतलब ये है कि तारीख की किताबों में जिसे हम एक नाकाम जंग के तौर पर पढ़ते हैं, वो असल में दो अलग अलग कहानियां हैं, एक महाज पर कामयाबी और दूसरे पर नाकामी। बिल्कुल यही बात है। आइबेरिया में उन्हें शानदार कामयाबी मिली। 1147 में अंग्रेज, जर्मन और फ्लेमिश सलूबियों के एक बहरी बेड़े ने पुर्तगाल के बादशाह अल्फोंसो अव्वल की मदद से लिस्बन को फतह कर लिया। लिस्बन, ये तो बहुत बड़ी फतह है। बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक फतह थी, क्योंकि लिस्बन बाद में पुर्तगाली सल्तनत का दारुल हुकूमत बना। इसके अलावा अल्मेरिया और टोटोसा जैसे अहम शहर भी फतह हुए। तो यूरोप के एक कोने में सालिबियों को कामयाबी मिल रही थी। लेकिन हजारों मील दूर मशरिक में, जहां असल जंग लड़ी जानी थी, कहानी का रुख बिल्कुल मुख्तलिफ होने वाला था। जी, वहां से तबाही का सफर शुरू होता है। तो अब आते हैं मरकजी महाज पर। दो बादशाह, दो अजीम फौजें, जर्मनी और फ्रांस की, उनका सफर कैसा रहा? दोनों फौजों ने अलग अलग रास्ते इख्तियार किए। जर्मन फौज कोनराड के क़यादत में पहले रवाना हुई। जब वो बाज़ंतीनी सल्तनत के इलाके से गुजरे तो उनके ताल्लुकात मकामी शहंशाह मैनुएल अव्वल कुमनीनोस के साथ खराब हो गए। खराब हो गए? क्यों? मगरबी तारीखदान अक्सर मैनुएल पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उसने सालिबियों को धोखा दिया और खुफिया तौर पर सल्जुक तुर्कों को उन पर हमला करने के लिए उकसाया। क्या इस इल्ज़ाम में कोई हकीकत है? ज़्यादातर जदीद मुअर्रिखीन इस बात को रद्द करते हैं। मैनुएल के पास ऐसा करने की कोई ठोस सियासी वजह नहीं थी। असल मसला ये था कि बाज़ंतीनियों को डर था कि ये लाखों की फौज उनके दारुल हुकूमत कुस्तंतुनिया पर ही हमला ना कर दे, जैसा कि बाद में चौथी सुलेबी जंग में हुआ भी। बिल्कुल। इसलिए वो चाहते थे कि ये फौज जल्द अज जल्द उनके इलाके से निकल जाए। लेकिन असल तबाही अनातोलिया में हुई। कोनराड ने वहां के सफर की लंबाई और खतरात का बिल्कुल गलत अंदाजा लगाया और एक महलक गलती कर बैठा। क्या गलती? उसने अपनी फौज को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। और उसका नतीजा क्या निकला? मुकम्मल तबाही। 25 अक्टूबर 1147 को डोरिलियम के मुकाम पर सिल्जूक तुर्कों ने कोनराड की फौज के मरकजी हिस्से पर हमला कर दिया। और ये कोई मामूली शिकस्त नहीं थी। बिल्कुल नहीं। सिल्जूकों ने अपनी क्लासिकी हिकमत अमली इस्तेमाल की। पहले हमला करो, फिर भागने का ड्रामा करो, और जब दुश्मन बिखर कर तुम्हारा पीछा करे तो घात लगाकर चारों तरफ से हमला कर दो। सही। कोनराड की भारी भरकम जर्मन फौज इस जाल में बुरी तरह फंस गई। जराए बताते हैं कि मैदान लाशों से भर गया था और कोनराड खुद जख्मी हालत में बमुश्किल जान बचाकर भागा। तो जर्मन फौज मुकद्दस सरजमीन पहुंचने से पहले ही तकरीबन खत्म हो गई। फ्रांसीसी फौज का क्या बना? फ्रांसीसी फौज कुछ बेहतर हालत में थी, लेकिन उन्हें भी उन्हीं मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अनातोलिया में माउंट कैडमस के मकाम पर उन पर भी तुर्कों ने हमला किया और भारी नुकसान पहुंचाया। इसी अफरा तफरी के बीचों बीच आप तसव्वुर करें, फ्रांस का बादशाह लुई सातवां अपनी फौज से बिछड़ जाता है। तुर्क तीरंदाज उस पर हमला करते हैं, लेकिन उसके शाही लिबास की वजह से वो उसे कोई आम अमीर नाइट समझ रहे हैं। मतलब वो उसे पहचान नहीं पाए? वो उसे पहचान नहीं पाए। वो एक चट्टान पर चढ़ जाता है, अपनी तलवार से अपना दिफा करता है, और सिर्फ इसलिए बच जाता है क्योंकि हमलावरों को अंदाजा ही नहीं होता कि वो किस कदर बड़े इनाम के करीब हैं। ये तो किसी फिल्म का सीन लगता है। बिल्कुल, ये तारीख के इन नाकाबिले यकीन लम्हात में से एक है। तो बिल आखिर जब ये टूटी फूटी थकी हारी फौजें मुकद्दस सरजमीन पहुंची तो क्या हुआ? आप सोचेंगे कि अब इनकी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुश्किलात तो असल में अब शुरू हुई थीं। जब लुई आंतोकिया पहुंचा तो वहां उसकी बीवी एलेनोर ऑफ एक्विटेन के चचा रेमंड की हुकूमत थी। अच्छा। पहुंचते ही मियां बीवी में शदीद इख्तलाफात शुरू हो गए। रेमंड चाहता था कि लुई उसकी मदद करे और हल्ब पर हमला करे, जो कि जंगी का मरकज था। जो कि मंतकी बात लगती है। जी, लेकिन लुई ने इनकार कर दिया। उसका कहना था कि उसकी पहली तरजीह यरूशलेम की जियारत करना है। इस झगड़े ने सलीबियों के अंदर पहली दरार डाल दी। ठीक है, तो ये सब रहनुमा आखिरकार यरूशलेम के करीब एकर शहर में इकट्ठे हुए। अब इनको फैसला करना था कि हमला कहाँ करना है, और यहीं पर वो फैसला हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। जी, यही इस जंग का सबसे मुतनाज़िया पहलू है। जंग का असल मकसद था एडिसा को वापस लेना, लेकिन एकर में जब तमाम बड़े रहनुमा कोनराड, लुई और यरूशलेम की मलका इकट्ठे हुए तो हदफ बदल दिया गया। बदल दिया गया? क्या मतलब? उन्होंने दिमिश्क पर हमला करने का फैसला किया। क्या?
एक मिनट, ये तो बिल्कुल उल्टी बात लग रही है। आपका असल दुश्मन जंगी का बेटा नूरुद्दीन है जिसने एडिसा पर कब्जा किया, और आप हमला कर रहे हैं दिमिश्क पर जो अब तक आपका इत्तेहाद रहा है। ये फैसला किसने और क्यों किया, ये बात हजम नहीं हो रही। और आप ठीक कह रही हैं, मौरखीन भी सदियों तक इसे एक नाकाबिले फहम हमाकत ही कहते रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक पेचीदा स्ट्रैटेजिक सोच थी। क्या सोच थी? मकामी सलीबी सरदारों ने दिमिश्क का केस पेश किया। उनकी दलील ये थी कि दिमिश्क एक पके हुए फल की तरह है, अगर हमने इसे ना तोड़ा तो जंगी का बेटा नूरुद्दीन उसे तोड़ लेगा। बिल्कुल, और अगर दिमिश्क नूरुद्दीन के हाथ लग गया तो हलब और दिमिश्क मिलकर इतनी बड़ी ताकत बन जाएंगे कि सलीबी रियासतों का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि दुश्मन के मजबूत होने से पहले ही हम खुद उस पर कब्जा कर लेते हैं। ये तो बहुत बड़ी जुआबाजी नहीं लगती? आप अपने सबसे बड़े दुश्मन को छोड़कर एक ऐसी रियासत पर हमला कर रहे हैं जो आपके दुश्मन नहीं है, सिर्फ इस डर से कि वो मुस्तकबिल में दुश्मन बन सकती है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा जुआ था और ये बुरी तरह नाकाम हुआ। कैसे? उन्होंने दिमश्क का मुहासरा शुरू किया। पहले उन्होंने शहर पर मगरिब से हमला किया जहां घने बागात थे। ये हिकमत अमली के लिहाज से अच्छा था क्योंकि फौज को फल और पानी मिल रहा था, लेकिन दिमश्क के मुहाफिजों ने सख्त मुकाबला किया और उन्हें पीछे धकेल दिया। फिर क्या हुआ? फिर सलेबी रहनुमाओं ने एक और मोहलिक गलती की। उन्होंने मुहासरा मगरिब से उठाकर शहर के मशरिकी हिस्से की तरफ मुंतकिल करने का फैसला किया। क्यों? मशरिकी दीवारें कमजोर तो थीं, लेकिन वहां खुला मैदान था, ना पानी, ना खुराक और ना ही दुश्मन के हमलों से बचने के लिए कोई आड़। यह फैसला इतना अजीब था कि अफवाहें फैल गईं कि मुकामी सलेबी सरदारों ने दिमश्क के हुक्मरान से रिश्वत लेकर यह फैसला करवाया है। तो नतीजा क्या निकला? 2 बादशाह, यूरोप की सबसे बड़ी फौजें और एक शहर का मुहासरा। नतीजा निकला मुकम्मल नाकामी। जैसे ही वो मशरिक की तरफ मुंतकिल हुए, उनकी रसद खत्म होने लगी। इसी दौरान उन्हें खबर मिली कि नूरुद्दीन एक बड़ी फौज के साथ दमिश्क की मदद के लिए आ रहा है। ओह! ये सुनते ही इस सुलूबी रहनुमाओं में बदहवासी फैल गई। सिर्फ 4 दिन के मुहासरे के बाद तीनों बादशाहों ने मुहासरा खत्म करने और पसपाई का फैसला किया। सिर्फ 4 दिन? जी, सिर्फ 4 दिन। ये दूसरी सुलूबी जंग का इख्तिताम था। इतनी बड़ी मुहिम, इतना सफर, इतनी तबाही और आखिर में सिर्फ 4 दिन का मुहासरा और फिर वापसी, ये तो यकीन करना मुश्किल है। तो इन सब का मतलब क्या है? इस अजीम नाकामी के असरात क्या हुए? इसके असरात बहुत गहरे और दूर रस थे। सबसे पहले इसने यूरोप से आने वाले सुलूबियों और मुकद्दस सरजमीन में पहले से मौजूद सुलूबियों के दरमियान गहरी बदएतमादी पैदा कर दी। दोनों एक दूसरे पर नाकामी का इल्जाम लगाते रहे? बिल्कुल। उसके बाद यूरोप से कई दहाइयों तक कोई बड़ी मदद नहीं आई। और इसका मुसलमानों पर क्या असर पड़ा? मुसलमानों के लिए ये एक बहुत बड़ी नफसियाती और स्ट्रेटेजिक जीत थी। दिमश्क पर नाकाम हमले ने नूरुद्दीन के लिए रास्ता साफ कर दिया। अच्छा। दिमश्क के लोग, जो पहले सलीबियों के इत्तेहादी थे, अब उनसे नफरत करने लगे और उन्होंने नूरुद्दीन के लिए शहर के दरवाजे खोल दिए। 1154 में नूरुद्दीन ने दिमश्क पर कब्जा कर लिया और पहली बार शाम एक मजबूत मुस्लिम हुक्मरान के तहत मुत्तहिद हो गया। और नूरुद्दीन के इसी मुत्तहिद शाम ने सलाहुद्दीन के लिए बुनियाद फराहम की। बिल्कुल। उसी ताकतवर रियासत ने आगे चलकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के उरूज की बुनियाद रखी, जिसने 1187 में हत्तीन की जंग में सलीबियों को फैसला कुन शिकस्त दी और यरूशलेम को फतेह कर लिया। तो एक तरह से दूसरी सलीबी जंग की नाकामी ने तीसरी सलीबी जंग की वजह पैदा की। जी। उसके अलावा इस जंग ने लुई हफ्तम और एलिनोर की शादी को भी तबाह कर दिया, जो बाद में तलाक पर खत्म हुई, और बाइजेंटीनी सल्तनत के साथ ताल्लुकात को भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। तो ये एक ऐसी नाकामी थी जिसकी लहरें आने वाली कई दहाइयों तक महसूस की जाती रहीं। जी हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। जराए बताते हैं कि इस नाकामी के बाद यूरोप से मदद मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। एक सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि अगर किसी तरह ये सलीबी जंग दमिश्क में कामयाब हो जाती और सलीबी इस स्ट्रेटेजिक शहर पर कब्जा कर लेते, तो क्या नूरुद्दीन कभी शाम को मुत्तहिद कर पाता? क्या सलाहुद्दीन का उरूज मुमकिन होता? और क्या मशरिक़ वुस्ता की तारीख आज वैसी ही नजर आती जैसी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो नहीं, लेकिन ये इस जंग की अहमियत को जरूर वाज़ेह करता है।